जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान जाने से रोका गया मुसलमानों को, लेकिन एक न्यूज़पेपर कैसे कर सकता है ऐसे काम? मेरी आवाज में इतना दम है, जो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे हैदराबाद से उतने लोग नहीं गए। हैदराबाद में ऐसे भी लोग थे whose mother used to work in the Nizam's department and she is very adept at reading Urdu. She used to read. आज सियासत की जानिब से उर्दू पढ़ना सिखाते हैं। 2 लाख आदमी उर्दू सीखते हैं कि सियासत हर वो काम करता है जो आज ज़रूरी है अवाम के लिए। How many copies do you sell per day, sir? 70,000। Usually newspapers, media houses एक political tint लेता है, मगर कोई मेरा साथ नहीं। नो पार्टी मैन केम टू माय रेस्क्यू। कभी कभी आपको लगता है कि ठीक है पैशन तो ठीक है लेकिन पैसे नहीं बन रहे। My mother has 2 houses at Delta, given by his father. That is also sold. Welcome to Conversations on Hybris TV. I'm Suresh Kochatal. Newspapers are something that we look forward to every day. A cup of tea along with a newspaper is mandatory for any Indian. True, post-COVID, the world has changed. People have gone to the electronic devices. The younger generation doesn't even read a newspaper. But then there are some newspapers which have survived time. And one such is Siyasat in Hyderabad. A long checkered history, hundreds of years. And today I have with me somebody who can speak authoritatively on that subject. Zahid Ali Khan Sahib, the editor of Siyasat. Assalamu alaikum. Walaikum. Zahid Sahib, just me start with you. Can you take us through your family tree? How did Siyasat come into being in the first place? You see, after the police action, people were running away to Pakistan. Then my father thought of stopping the Muslims going to Pakistan. So he started a newspaper and he successfully tried for the people to stay back in Hyderabad. That is a great opportunity for him, that he had the work to be done, and only the Siyasat paper which has started at that time to stop the Muslims from going to Pakistan. जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान जाने से रोका गया मुसलमानों को, that must have been quite a challenge at that point in time. आपको रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनके बात करने के लिए. लेकिन एक न्यूज़पेपर कैसे कर सकता है ऐसे काम? आप कैसे बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर लोगों को मोटिवेट करेगा कि न जाइए, यहीं रहिए? बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। हाँ जी। और अब मैं इस बात की खुशी है मुझे कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे हैदराबाद से उतने लोग नहीं गए, और वो सियासत की वजह से नहीं हुआ। सियासत शुरू ही से आफ्टर द पुलिस एक्शन we started stopping the people going to Pakistan. No, Hyderabad Usmania University, especially at one point in time, had Urdu as the medium of instruction. Yes. हम सबको पता है वो बात. But हैदराबाद में ऐसे भी लोग थे, people were there who were basically, even the Hindus used to be very adept at reading Urdu. Because one, they were working with the Nizam's government, so they knew Urdu. There was one friend of mine, Sunil, who used to work in Times, whose mother used to work in the Nizam's department. And she was very adept at reading Urdu, and she used to read your newspaper. Yes. So I used to often get surprised कि आपको उर्दू आती कैसी है? So do you think the accent of Urdu into Hyderabad, along with the generations of Nizam that came into being, do you think you have challenge of modern times, when even in Urdu itself there are 2-3 newspapers now in Hyderabad, which again there is a Hindi newspaper in Hyderabad which we all know. Yes. There are of course English newspapers. Milab. So how did Siyasat over the years, police action, fine, after that it grew, how does it keep pace with the time? ये ना कि लोग पेपर पढ़ना, उर्दू पढ़ना, आपको भी एक चैलेंज होगा कि जो यंग जनरेशन है, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग पेपर पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके जो यंग जनरेशन है वो न्यूज़पेपर, नॉट जस्ट सियासत बाय इटसेल्फ, न्यूज़पेपर पढ़ना ही उनको एक हैबिट नहीं हो रहा है अभी आजकल, वो एक चैलेंज है क्या सर? देखिए, अब आजकल इतने चैनल्स आ गए,
उसकी वजह से अखबार के सर्कुलेशन में फर्क रहा। हाँ जी। मगर मुझे याद है कि जितने भी पुराने हिंदूज थे, मुस्लिम तो उर्दू पढ़ते थे, मगर हिंदूज भी उर्दू पढ़ते थे। कई फैमिलीज ऐसे थे हैदराबाद में जिनको सिवाय उर्दू की और कोई लैंग्वेज नहीं आती, और बड़े फख्र के साथ ये कहते थे, हम आपका अखबार पढ़े या आपकी किताबें पढ़े। ऐसे ऐसे भी लोग थे जो बड़ी खुशी महसूस करते थे कि वो ये इजहार करने के लिए। जब आप उर्दू पेपर की बात कर रहे हैं, आप जैसे फ़ख्र से लोग बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं आपका न्यूज़पेपर, आपको लगता है कि आपने जो एडिटोरियल पॉलिसी फॉलो किया था राइट एट द स्टार्ट से लेकिन अभी तक, उसी का एक सक्सेस है ये? बिल्कुल। पेपर चलता है एडिटोरियल रेफरेंसेस पे। जब एडिटोरियल रेफरेंसेस मिलते हैं तो लोग तो उसको जानने लगते हैं, और जानने लगने के बाद उनको जो मवाद मिलना चाहिए अखबार में वो मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप देखिए, अभी आप लूथर साहब का नाम लिए। हाँ। लूथर साहब का ये आलम था कि उन्होंने सियासत पढ़े बड़े रह ही नहीं सकते। राजा बहादुर गौड़ ये उर्दू पढ़े के बगैर नहीं रह सकते थे। श्रीनिवास लाहौटी ये भी उर्दू पढ़ते थे। तो ये बल्कि उर्दू पढ़ते थे, उर्दू के लिए काम भी करते थे। तो अब ऑफिसर्स में जो थे हाँ जी। वो भी उर्दू पढ़ते थे, उर्दू में बात करते थे। बीपी वाले विट्ठल जो सीनियर एसटीएस थे वो भी उर्दू पढ़ते थे। राजा बहादुर गौड़ भी उर्दू पढ़ते थे। तो उर्दू वॉज एसेंशियल फॉर देम। तो लेकिन हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ, तो उर्दू के बगैर उनको काम नहीं करता था। तो उर्दू पढ़ना जरूरी था, तो उर्दू पढ़ते थे। आप अब जो देखते हैं उर्दू पढ़ने की बात ही करते हैं, हिंदू भी पढ़ते थे उस ज़माने में मुसलमानों के साथ, लेकिन जब जनरेशन आगे चलता गया, टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गया और हमने देखा कि इंग्लिश का जो एसेंडेंस शुरू हो गया, तेलुगु भी थोड़ा आना शुरू हो गया था। ईनाडू जैसे पेपर है, बाकी जैसे पेपर है जिसने आपका मिलाप हिंदी में भी है, ऐसे कैसे पेपर चलते चलते रहते हैं। लेकिन ये लगता है कि आपको जो उर्दू एजुकेशन है, क्या वो कोई बैक सीट लिया या अभी भी उर्दू एजुकेशन को इतना ही प्रोमिनेंस दिया जा रहा है? एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। आज सियासत की जानिब से उर्दू पढ़ना सिखाते हैं हम, बहुत अच्छा। और कोई 100 आदमी 200 आदमी नहीं, 2 लाख आदमी उर्दू सीखते हैं और हमारे एग्जाम्स देते हैं। और वो कामयाब होने के बाद इदारे अदब उर्दू में वो क्लासेस अटेंड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी है सियासत की तरक्की के लिए, सियासत की मकबूलियत के लिए, कि सियासत हर वो काम करता है जो आज ज़रूरी है आवाम के लिए। तो बहुत अच्छा मौका हमको मिला है कि हम उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। मैं पढ़ता हूँ तो कभी कभी सियासत का जो वेब पे जाता हूँ तो इंग्लिश भी है सियासत आता है। तो कीपिंग अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि कीप चेंजिंग विद मॉडर्न टाइम्स, आपने जो इंग्लिश में भी आना शुरू किया। आपके बहुत सारे रीडर्स गल्फ में होंगे जो हैदराबाद से जाते हैं, जैसे हमारे मैं केरला से हूँ तो केरला के न्यूज़पेपर्स, मलयालम न्यूज़पेपर्स गल्फ में भी बहुत बिकते हैं। जी हाँ। जैसे आपका भी सियासत का कोई एडिशन गल्फ या गल्फ कंट्रीज में कहीं बिकता है? नहीं, एक दुबई से शुरू हुआ था। हाँ जी। मगर यहाँ से जाने के लिए बहुत सहूलत थी। इस वास्ते लोग हैदराबाद की कापी हाथ में लेना चाहता था। वही वजह है कि सियासत इतना मकबूल हुआ है, न सिर्फ गल्फ कंट्रीज में बल्कि अमेरिका में। वाह। हाँ, ई पेपर है तो कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। अब ई पेपर अब शुरू हुआ, उससे पहले तो यहाँ से बाज़ाब्ता पेपर जाता था, फिजिकल पेपर। फिर फिजिकल पेपर। तो दुबई, कतर, अबू धाबी, ये सब कंट्रीज के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, फिर तकरीबन 25,000 अखबार जाते थे। आप और हम, जैसे मेरे पिताजी भी के टाइम पे भी चाय के साथ पेपर एक हैबिट था। सुबह जिस दिन कभी साल में 3 दिन छुट्टी होता है पेपर को, उस दिन भी घूमते रहते कि पेपर कब आएगा, सोच के, पता कि नहीं पेपर की छुट्टी है उस दिन। लेकिन
आपको लगता है एक चैलेंज सिर्फ उर्दू पेपर्स के लिए नहीं है, अंग्रेजी पेपर्स के लिए भी है, मैगजीन्स के लिए भी। मैगजीन्स तो ऑलमोस्ट डेड हो गया है। मैगजीन आने एक ज़माने में इंडिया टुडे, आउटलुक, ये सारे टेबल पे रहते थे, कॉफ़ी टेबल बुक जैसा Yeah. सब लोग के घर में रहते थे। Yeah. लेकिन आजकल पेपर भी बंद हो गए, शायद टेलीविज़न के आने से, उसके बाद डिजिटल मीडिया आने से ये हो रहा है। आपको लगता है कि एक चैलेंज है दैट टू गेट यंगस्टर्स टू रीड अ न्यूज़पेपर, जो 18 से है 24 25 Yeah. तक, उनको पेपर पढ़ना, नॉट जस्ट सियासत, न्यूज़पेपर पढ़ना इटसेल्फ इज अ चैलेंज? नहीं, हाँ जी, न्यूज़पेपर पढ़ना चैलेंज नहीं है, इसलिए कि टू गेट अवेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द कंट्री यू हैव टू नो। और इन द वर्ल्ड, इट इज नेसेसरी टू रीड न्यूज़. But are they reading a newspaper? Yes. That is my question. Yes, that's why Siyasat is having the largest circulation Even now. Even now, How many copies do you sell per day, sir? 70,000. That's very big for a city like Hyderabad. We cover Telangana, Andhra, then Mysore, Hyderabad, Karnataka. Hyderabad, Karnataka area, Aurangabad, Beer, Parbani, Nanded. Nanded. So that we have our agents there. Okay. पुराने ज़माने में ओल्ड टाइम टाइप सेटिंग मशीन हुआ करता था, मैनुअल करना पड़ता था, देन कंप्यूटर्स आना शुरू हो गए, टाइप सेटिंग से टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, हॉट प्रेस शुरू हो गया। उसके बाद हाउ हैज सियासत ऑल्सो evolved in terms of using technology in day-to-day printing, in newspaper editing, story editing, visual elements like photographs, all that? How has siyasat also kept pace with time? You see, actually, we started with hand calligraphy. Oh, that is even earlier than that. Yes, and we have to keep them on the table to write it down, putting their legs here and writing. But after writing, we started offset. So they were trained in the offset printing. Correct. We have got the printing machines. We had 6 litho machines. Those days, Old. British. Yes. After that, we took two offset machines. And we were the first in Hyderabad to go on the offset. Then after having these 2 machines, we were short in the printing. So we have to adopt the rotary machine. Now we have got two rotary machine printing 16 pages at a time, 16 and 16, 32 pages at one time. And after that, we started the color printing. Oh, So it is in the color process also. I worked for say 18 years in a newspaper, major newspaper in this country. एक चीज़ है कि पेपर चलाना एक पैशन अलग बात है, लेकिन उसको इकोनॉमिकली चलाना, उसको प्रॉफिटेबली चलाना, अगर प्रॉफिट ना भी हो तो ब्रेक इवन चलाना बहुत मुश्किल है, और आजकल के ज़माने में और इट्स अ बिगर चैलेंज। डू यू थिंक, कभी कभी आपको लगता है कि ठीक है पैशन तो ठीक है लेकिन पैसे नहीं बन रहे? नहीं, देखिए जब स्टार्ट करे थे, nobody in the family helped Abid Ali Khan to start the newspaper. Okay. His sister, she sold her Jewelry. jewelry and give it to Abid Ali. My mother has 2 houses at that time, given by his father. That is also sold. But from 60 onwards, we started getting the profit. And now I think in whole of India, there is no Urdu paper with such a maintainable income to run a newspaper. That's excellent, because end of the day यही होता है कि तनख्वाह देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, पावर का कंजम्पशन. And we have never one day late in giving the service. That is excellent, sir, because that's a unique thing in the media industry. बहुत यूनिक है. सर, when you, आप जब देखते हैं कि जब लोग बात करते हैं उर्दू न्यूज़पेपर्स के, भारत देश में भी ज़्यादातर पेपर्स नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे. आपको आपके ख्याल में हैदराबाद का अगर कंपेयर किया जाए यहाँ के जो 3 या 4 उर्दू न्यूज़पेपर और
नॉर्थ के कंपेयर किया जाए, डू यू थिंक वी हैव स्टिल केप्ट पेस विथ द मॉडर्न टाइम्स कि उनका भी पेपर नॉर्थ में चलता है लेकिन उर्दू ज़्यादातर यहाँ भी पढ़ा जाता है? नहीं, समझा नहीं। नॉर्थ में भी पेपर्स बिकते हैं उर्दू? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में बिकते हैं। वही उनका जो कंपेयर करेंगे। आई थिंक नॉट इन केरला, या except in Kerala, we have Urdu newspapers are there in the whole of India. So that culture of reading Urdu still prevails not just in Hyderabad and Andhra, Telangana, Hyderabad, Karnataka, but also in other parts of the country. Yes. And when you look at your newspaper versus their newspapers, okay, what is the difference that you see in terms of the news quality, sir? आपका कवरेज और उनके कवरेज में क्या फर्क है? We have started giving the news items to about 12 or 15 newspapers throughout India. Okay. So you give your content to them also? Yes. So they can run the newspaper. Otherwise, they have to have calligraphy, translator, everything. Now they are taking our news and publishing. News syndication we call Yeah. it. Yes. तो when you look back at the journey, सियासत का जो जर्नी चल रहा था, आपको लगता है कि बिजनेस वाइज आपने कहा ठीक है पैसे बना रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे की अगर सोचेंगे से 50 years from now या इवन 10 years from now कि कहाँ सियासत कहाँ तक जाएगा, आप आगे नेक्स्ट जनरेशन को जब हैंड ओवर करेंगे और हैंड ओवर कर भी चुके हैं, तो उनका जो माइंडसेट है क्या वो आपसे मिलता है? बिल्कुल। मेरी आवाज में इतना दम है, हाँ जी, कि आमिर अली खां उसको बता नहीं सकते। वही, बिकॉज क्या होता है कि यूजुअली जब बिजनेस देखा जाता है, Still at the age of 81, 82 years, I am coming to the office daily. दैट इज वंडरफुल। क्योंकि जब देखा जाता है यूजुअल बिजनेस में, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड जनरेशन जब थर्ड जनरेशन तक आते हैं तो उनको इंटरेस्ट चला जाता है बिजनेस से, वो लोग और कुछ देखना शुरू करते हैं कि इसमें क्या प्रॉफिट है, इसमें तो पेपर तो चलता रहेगा, मैं और कोई बिजनेस में चला जाता हूँ, रियल एस्टेट में जाऊँगा या और कुछ करूँगा या मैन्युफैक्चरिंग में चला जाऊँगा, तो द इनिशियल बिजनेस गेट्स लॉस्ट। लेकिन आपके केस में वो नहीं हुआ? नहीं, वो नहीं। बहुत अच्छा। Amir is totally involved in the newspaper, although he has become the MLT, but his work is done in the office. So one more thing, sir, very important, and before we close the conversation is usually newspapers, media houses एक political tint लेता है, ठीक है, rightly और wrongly उनका एक political tint रहता है, वो उनका prerogative है कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं राइटिस्ट हूँ, मैं सेंट्रिस्ट हूँ या जो भी हूँ है। मीडिया टेलीविजन पे भी देखा जाता है कि बहुत क्लीन पोजीशंस लेते हैं ये लोग। क्या सियासत को कभी ये एक क्या कहते हैं थॉट में आया कि हम पॉलिटिकल लीनिंग में नहीं जाएंगे, हम हमारा न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे? आपको कभी भी ऐसा कुछ डाउट आया था कि नहीं यार छोड़ो, पॉलिटिक्स का एक लीनिंग लेने से मेरे को भी कुछ फायदा होगा? चन्ना रेड्डी का जमाना था, बोलिए। उसमें चन्ना रेड्डी आबिद अली खान साहब को बोले कि हैदराबाद से आप कंटेस्ट, आई वॉन्ट यू टू बी इन द पार्लियामेंट। वालिद बोले नहीं, मैं अपना अखबार चला रहा हूँ और उसको इस्टेब्लिश करके अपनी ज़िंदगी का आगाज उसी में मैं खुश रहूँगा। तो उन्होंने बोले, चन्ना रेड्डी साहब बोले, जाहिद को दे मैंने मेरे से पूछे, तुम बुला के देखिए, जो काम मेरे बाबा नहीं करा, मेरे वालिद नहीं करे, वो काम मैं नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद न सिर्फ वो, मैं कुछ दिन के लिए तेलुगु देशम में गया था, नॉट फॉर एनी पोस्ट, आई वॉज इन ओनली दी पॉलिट ब्यूरो, एंड आई हैव गॉट ग्रेट रेस्पेक्ट फ्रॉम चंद्रबाबू नायडू, because I have never asked for any political favor. I have recommended many people in the Telugu channel. Masadi is one of the. That's wonderful because आपके जो तेलुगु देशम के साथ मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन आप खुद बोल दिए बात। लेकिन यह है कि आजकल पॉलिटिक्स में उतरना सबको लगता है, स्पेशली मीडिया ओनर्स को पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, यह कि कोई पद्मा अवार्ड मिल जाए मुझे, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपके वालिद और आप दोनों ने ये बात से इनकार कर दिया, ये बहुत
बहुत खास है, ये चलता नहीं ज़्यादातर, क्योंकि जो आइडियल्स है वो शायद वो जनरेशन से ख़त्म हो रहा है, आपके जनरेशन से ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा मटेरियल बेनिफिट्स देखता है। लेकिन अगर आपके व्हेन वी ऑल पास अवे फ्रॉम हियर, जब पलट के देखते हैं तो लोग आपके बारे में क्या बोलना चाहिए, आपको देख के बोलना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे एक शख्स थे जो ये थे, क्या बोलेंगे लोग? देखिए, हैदराबाद में सियासत सिर्फ एक घर की हुई। हैदराबाद में किसी आदमी को पॉलिटिक्स में आने की इजाज़त नहीं। इसके बाद जो लड़ा मजलिस से वो हार गया, मैं भी लड़ा, मगर कोई मेरा साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, इवन पार्टी ऑल्सो, नो पार्टी मैन केम टू माई रेस्क्यू। मगर इसके बावजूद आई गॉट द मैक्सिमम वोट्स anybody has taken in the history. इनफैक्ट आपसे बात करते निकलेंगे, क्योंकि हैदराबाद के बारे में पूछेंगे तो आप और हिस्ट्री बताएंगे हमें। लेकिन समय की एक पाबंदी होता है, कभी भी आजकल के लोगों के पास टाइम भी नहीं है कि आधे घंटे का इंटरव्यू देखे। लोग इंस्टाग्राम जनरेशन बन गए कि जितनी जो बोलना है 30 सेकंड में बोलो, 1 मिनट में बोलो, खत्म कर दो। शायद वो अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है आजकल की यंग जनरेशन में। लेकिन जाहिद अली खान साहब, हमसे बात करने के लिए और आज इतना टाइम हमारे साथ बिताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हाईवेज टीवी की तरफ से भी हम आपको एक क्या कहते हैं, एक बड़ा सा एक थैंक यू बोलते हैं इस बात के लिए। कोई बात नहीं है इसमें, इसलिए कि मैं ऐसे लोगों से हर बार नए अंदाज में मिलना चाहता हूँ ताकि अपनी भी नॉलेज बढ़े, उनकी भी नॉलेज बढ़े, और ये वहम आप जो पेश करेंगे वो दुनिया भर में आम होगा, सबको पता ना है। खुदाफिज। That, ladies and gentlemen, was Zahid Ali Khan, editor of Siyasat, a newspaper that has survived the times, that has survived the challenges, and survived all the moments in history, still going strong. Thank you for watching. Jai Hind.